Dr. Zahir I. Qazi is a Padma Shri awardee. He has been conferred with this prestigious award for his contribution in the field of education. He is also the president of Anjuman Islam, a Mumbai-based organization which is doing some amazing work in the field of education. Dr. Qazi has also been conferred with Sir Syed Excellence National Award from Aligarh Muslim University. He joins me online from Mumbai now. Welcome to the Searchlight, sir, and Assalamu alaikum. Walaikum Assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sir, my first question to you would be, sir, you were conferred with the Padma Shri in 2024. How did you get to know about it, and what was your first reaction? To be very honest, I was not aware that I'm being awarded to begin with. I was told people normally fill up some online forms and all kind of thing, which I had never done. It so happened about a week prior to 26th January, which is the day that they announced, on the eve of that. We were organizing Urdu Kitab Mela in collaboration with our NCPOL organization, which is a huge Mela. And on the sixth day of that Mela evening, I received a call from the collector, district collector, and he started asking about where do I stay? This is your residence. How long you have been staying? So for a moment, I told him, is there any problem with respect to my place where I stay? Any litigation? He said, no, no. I said, it's a good news or bad? He said, good. So then I said, you need to tell me. He said, I can only tell you that you are shortlisted for Padma Awardee. And I need your detailed biodata and all that, what you have done in short. So I said, I don't know what is the format. You send me one sample. And I did that. And then I realized different authorities were trying to find out the all kind of background, say IT से लेके हर जगह. तो तब मेरे समझ में आया कि ये सिलसिला शुरू हो गया. लेकिन I was told it is just shortlisted and there will be final announcement will be done. Some people will be out, some people will be in. And I was doing sonography in one of the hospitals. By the way, I am a practicing radiologist for the last 43 years staying in US. Right. So I was in the hospital doing a sonography. तो कॉल आया जॉइंट सेक्रेटरी फ्रॉम होम डिपार्टमेंट. तो उन्होंने कहा आप काजी जी हैं? मैं बोला बिल्कुल मैं जहीर काजी जी हूँ. तो बोला आपको पद्मा अवार्ड दिया जा रहा है, ये पुरस्कार दिया जा रहा है, तो आपको स्वीकार है? तो फॉर अ मोमेंट मैंने सोचा स्वीकार है, बोले क्यों नहीं होगा. तो मैं बोला ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बोले लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, देने के बाद लोग फिर रिसीव नहीं करते, रिफ्यूज करते हैं. आई सेड ऑल राइट. देन आई सेड लॉक किया जाए. ही सेड यस but don't tell anyone, the list will come late at night. Okay. So I did tell my wife and my children. My son was in Singapore and daughter was in Canada. So they are very techno savvy. I said dekhte raho tum, and I was in the midst of a lot of functions, this, that. Right. So first list came of only 30 people, so there was no name mention about it. So I told my children, all right, we were at least shortlisted, now wait and watch bigger list. Yes, that's a big So at thing. 11 o'clock, the list came and my name was there and I could not believe it. And I had never dreamt of it. उसका तस्वूर भी नहीं किया था. Right. So it was not going down कि क्या है. फिर Times of India called me up for a bite. So I started telling about my organization. She said, it's crazy. You are one person who is not talking about yourself. I told him, I feel this award is for my organization. And then a few things I did mention. So they covered about 6 of the people from state out of 12 with the photograph and all that. And then I started getting calls from people from every nook and corner of India, beyond India. रात भर जागे क्योंकि US से इधर से सब जगह कॉल आने लगे. And then I still could not believe it that it is it. And at the end of the day, I thought a kind of sense of fulfillment. Sure. I realized that all the good work that is being done doesn't go unnoticed. And ऊपर वाला जब नवाजता है, एक जरिया तो बनाता है. बिल्कुल. हमारे आदरणीय प्रधान और लोगों ने कहा कि इस सरकार में आपको रिकमेंडेशन के बगैर मिला है तो बहुत बड़ी बात है. मैंने हाँ बिल्कुल बड़ी बात है, सवाल ही नहीं. तो और
it took me time to understand, adjust. And fortunately, on 26th January, it became very clear that it was done. And it happened to be my birthday. Right. And so I said, okay, and 150 years of the organization, I said, ये 3 दिनों मिलके आ रहे हैं तो इसमें अच्छी और तोहफा क्या हो सकता है? जी तो जी, जितना बिल्कुल बेहतरीन। शुक्रिया अदा करे उतना कम है। राइट। And it's indeed a great honor. It's a great honor, unbelievable. और जब राष्ट्रपति भवन में अवार्ड सेरेमनी थी, मॉर्निंग में there was a kind of a mock trial, and then we went there, and it was very fascinating. You feel, फैबुलस। लगता है कुछ अलग ही है। जी जी जी। Darbar Hall, and then Ashoka Hall we went, and then all the Prime Minister, President, and Home Minister individually meeting each of the awardee. Then evening, there was a dinner at the Home Minister's place. So we felt so honored. राइट। And to be very honest, as I said, many a times I think whether do I deserve it. Then I feel okay, if I deserve it, then I need to do more work. That's how it is. Right, right. You absolutely deserve it, sir, and you're very proud about this award, and you carry the medal with you. I've seen it in one of the instances. But sir, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है, ये कहना गलत नहीं होगा कि जो तालीम है उसके लिए डेडिकेट करती है। और अंजुमन इस्लाम की अगर कामयाबी की बात करें तो आप उसके एक बड़े, जिसको कहते हैं कि पाए हैं, और आप उसकी सक्सेस के पीछे आप ही को उसका पूरा श्रेय दिया जाएगा। आपकी अंजुमन इस्लाम के साथ सफ़र कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में ज़रा हमें बताएं। वो ऐसा था कि मैं तो ओरिजिनली गोवा से हूँ। जी मेडिकल ग्रेजुएशन करने के बाद बम्बई शहर में आया मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, जी। और फिर यूएस भी चला गया। तो उस दौरान में मेरे बहुत करीबी ताल्लुकात थे दिलीप कुमार साहब से, अच्छा। यानी घरेलू ताल्लुकात आप कहिए। और जी तो उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि तुम तो बॉम्बे हॉस्पिटल में हो, हिंदुजा में हो, और रोटरी में हो, लायंस केस में हो, वगैरह वगैरह सब जगह हो, लेकिन तुम अपने इदारे में कहाँ दिखते नहीं है। तो मैंने कहा कहाँ जाना है? तो उन्होंने कहा ऑब्वियसली अंजुमन इस्लाम, जहाँ से मैंने पढ़ाई की है, जी। वहाँ यू कैन डू लॉट ऑफ वर्क। तो ओके। मैं अंजुमन इस्लाम का मेंबर पहले ही बन चुका था, ऑर्डिनरी मेंबर। तो मैंने उस वक्त के हमारे प्रेसिडेंट साहब थे, डॉक्टर जमखान आलम साहब से मैंने कहा कि मैं थोड़ा वक्त मेरा दूंगा। बहुत बिजी प्रैक्टिस थी मेरी। आई जी जी। वॉज हैविंग ऑलमोस्ट 3 क्लिनिक्स, 5 हॉस्पिटल्स। तो मैंने तय किया कि मैं 90s की बात कर रहा हूँ, बिगिनिंग ऑफ। तो ऐसा तय किया कि मैंने आई हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग, तो you can't do both. And I did my practice, I continue to do it, but curtail it by almost 50%. और उनके कहने पे मैंने यहाँ कदम रखे ये ऑर्गेनाइजेशन में। और वहाँ से फिर मैं बोर्ड का मेंबर बना, फिर चेयरमैन बना तिबिया मेडिकल कॉलेज का, फिर 3.5 years में सेक्रेटरी रहा। गुज़िश्ता 17 साल से मैं प्रेसिडेंट हूँ ऑर्गेनाइजेशन का। तो आई हैव कम अप फ्रॉम grassroots level, राइट। and my association with this organization is almost last 40 years. And the kind of growth this organization has seen in last 16 17 years, we call it exponential growth. और हर शोबे में हमने कामयाबी हासिल की। एक तो सबसे पहले हमने तय किया कि इसकी फाइनेंशियल जो हेल्थ है उसको मजबूत किया जाए। फिर इसका स्टैंडर्ड अपग्रेडेशन किस तरह हो, तो हमने फोकस किया एलिमेंट्री एजुकेशन में, क्योंकि अंजुमन तालीम देती केजी से पीएचडी तक। राइट। हमारे यहाँ 97 इंस्टीट्यूशन है, 1,10,000 बच्चे हैं, 3,500 से 4,000 टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है। तो ये तय किया गया कि हम क्वालिटी एजुकेशन लाएंगे। वी आर गिविंग क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जो हुआ, बड़ी तादाद में देते हैं, लेकिन अच्छी तालीम देना, मेयारी तालीम देना, ये मैं हमने सोचा ये हमारा काम होना चाहिए। तो इस सिलसिले में हमने मेयार बढ़ाने की कोशिश की, और बहुत जल्दी कामयाबी मिली। जी। 3 साल के अंदर अंजुमन का जो ब्रांड बन गया इंडिया, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर, इन मेनी वेज। और फिर हमने एक तय कर लिया कि वी मस्ट कॉन्सोलिडेट, जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है उसको कॉन्सोलिडेट किए, और एक्सपांशन शुरू हो गया।
एक मिसाली कैंपस बना हमारा न्यू पनवेल में, जहाँ एयरपोर्ट अभी आया है। तो एक साथ में हमने एक इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, पॉलिटेक्निक शुरू किया, जहाँ 6,000 टेक्निकल बच्चे पढ़ते हैं। और वो कैंपस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, AICT, दे कॉल इट रोल मॉडल, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इट, बट वी वर नॉट एलिजिबल, यूनिवर्सिटी से ने आप कीजिए। फिर एक साल के बाद कहा PhD प्रोग्राम शुरू। तो इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, one institute we developed, we got a chance right from foundation to what it is today. It is considered to be world class by all authorities that matter. And likewise, we did a lot of many things. हमने एक नई लॉ कॉलेज बनाई, उसके साथ साथ अंजुमन के 2 केटरिंग कॉलेजेस हैं, 2 इंजीनियरिंग, 4 पॉलिटेक्निक हैं, होम साइंस है, फिर बिजनेस मैनेजमेंट है, यूनानी मेडिकल कॉलेज है, कॉलेज फॉर कॉमर्स है, कॉलेज फॉर एजुकेशन है। और अभी हम मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं, विच इज़ इन द पाइपलाइन, एंड वी शुड स्टार्ट दैट प्रोजेक्ट आफ्टर मंसून। तो हर शोबे में, उसके साथ साथ अंजुमन की खूबी ये है कि सिर्फ हम तालीम ही दे रहे, तालीम तो दे रहे हैं, साथ साथ में सोशल वर्क, खिदमत खल। तो हमारे 2 यतीम खाने हैं, एक वर्सोवा मुंबई शहर में है और एक पूना में है। और जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज हैं, चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर, दे हैव ग्रेडेड इट एज A ग्रेड ऑल दिस ईयर्स। Right. और हम, जो हमारे चाहने वाले, उनसे हम कहते हैं कि सरप्राइज विजिट पे आ जाइए, बोल के मत आ जाइए। बोल के आने के बाद सब लोग ठीक ठाक बना के बैठते हैं। यू कम एंड विजिट आवर ऑर्फनेजेस एंड सरप्राइज। और उसमें खूबी ये है कि हम बच्चों को अच्छी तरबियत देते हैं। हम जो हम जो खुराक खाते हैं, उससे बेहतरीन खुराक दिया जाता है। उनकी पढ़ाई को देखा जाता है, फिर उनको सेटल करते हैं, और साथ साथ उनकी शादियां भी होती हैं। जी जी। तो हमने प्रधानमंत्री के साथ मतलब कई मुलाकातें हुई, उसमें मैंने कहा, सर, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बसाओ करते हैं। यानी बेटी को बोला, बसाओ क्या होता है? बोले, इस तरह से यतीम बच्चियों का घर बसाते हैं। जी तो ये सिलसिला अंजुमन का जो है, गुज़िश्ता 150 साल मुकम्मल किए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से 1 साल पहले अंजुमन बना, और उसकी उसकी जो बुनियाद रखी गई, वो जी। बड़ी शख्सियत थी। जस्टिस बदरुद्दीन तैयब जी, जो बॉम्बे हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रहे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3rd प्रेसिडेंट रहे। और उनके साथ साथ काजी शमशुद्दीन साहब थे, जो कैम्ब्रिज से होके आए थे। तो ये लोगों ने सोचा कि एक मॉडर्न इंस्टीट्यूशन शुरू किया जाए, और वो कामयाब रहे। जी और आपको सुन के बड़ी खुशी होगी, 1880s में पहली एजुकेशन पॉलिसी बनी ब्रिटिश इंडिया की। तो उस पॉलिसी में जो अंजुमन के कर्ता धर्ता ने जो रिकमेंडेशन 5 दिए थे, वो पांचों के 5 वेर इनकॉर्पोरेटेड। अच्छा। They talked of technical education, vocational education, agriculture education, commercial means typewriter थे जब अभी computer आया, and they were all doing it, and that was accepted. So they were visionaries, and then subsequently people, जी a lot of people work hard for it. But जी। kind of growth that we have seen in 16 years is phenomenal. That Absolutely. goes to show this organization is not only survived, but it has grown beyond anybody's imagination. बिल्कुल। और मैंने एक बात कही कि एक्सेलेंस लाने की मियारी तालीम, वो कैसे होती है? एक तो आपके नताइज किस तरह होते हैं, नंबर 2 आपकी एलुमनाई कहाँ पे हैं, और नंबर 3 आपके कोलैबोरेशंस क्या हैं। हमारा पहला कोलैबोरेशन हुआ MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बॉस्टन। आप गूगल पे जाके देखिए, दैट्स नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन टेक्नोलॉजी। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। We had a first institute in India. Then we had collaboration with Westminster University, London. और अभी मैं सैन फ्रांसिस्को में होके आया लास्ट ईयर, और हमारी बातचीत हुई स्टैनफोर्ड से। वो स्टार्टअप और तुम्हारे इंक्यूबेशन सेंटर्स के सिलसिले में हम MOU साइन करने जा रहे हैं आने वाले महीने में। तो दीज आर कोलैबोरेशंस। उसके साथ साथ हमने एलुमनाई के ग्रुप्स बनाए हैं। अंजुमन के एलुमनाई पूरी दुनिया में है, और हर साल 2 गेट टुगेदर होते जहां मैं खुद जाता हूँ। लास्ट ईयर हमने टोरंटो में किया, फिर सैन फ्रांसिस्को में किया, और
बड़ी खुशी की बात ये थी कि जितने एलुमनाई थे बहुत सारे, दे आर अचीवर्स इन दोज कंट्रीज। उसमें एक शख्स है, अपूर्व मोदी, ये हम्म, बॉस्टन में है। हम्म, इन्होंने बी इंजीनियरिंग की हमारे साबु सिद्दीक से, एंड ही हैज बीन आउटसोर्स नासा लूनर 2030 प्रोग्राम टू हिम, वाह, एंड यू कैंट मीट हिम, देयर इज लॉट ऑफ सिक्योरिटी। यस यस, एक तो खातून सैन फ्रांसिस्को में आई, शी इज इन बॉस्टन एंड शी इज द जॉइंट डीन ऑफ ए इंजीनियरिंग कॉलेज। ओके, एक साहब हैं लतीफ नथानी, जो सैन फ्रांसिस्को में, ही इज द सीईओ ऑफ एआई मल्टीनेशनल फर्म। लंदन में जाओ तो वही कहानी है, टोरंटो में जी जाओ तो सुनने में आता है कि सब अचीवर्स है। सो जी, दिस इज वन बेंचमार्क कि तुम्हारे बच्चे यहाँ से पढ़ने के बाद वेयर आर दे। हम्म, अभी देखिए फिल्म इंडस्ट्री में, दिलीप साहब यहाँ से पढ़े, हम्म, इस्माइल मर्चेंट यहाँ से पढ़े, मुकरी साहब यहाँ से, कादर खान यहाँ से, तबस्सुम यहाँ से, सुरेखा यहाँ से। अंजुमन ने 6 टेस्ट क्रिकेटर्स दिए। हम्म, लेटेस्ट सेंसेशन इज यशस्वी जायसवाल, उर्दू मीडियम से पढ़ा, एंड मैन ही मेड ए डेब्यू। बॉम्बे शहर में एक हैरिस शील्ड होता है, बहुत पॉपुलर, बहुत फेमस। वहां से लोगों का सिलेक्शन होता है टेस्ट में, इंटरनेशनल में। तो हैरिस शील्ड में यशस्वी जायसवाल ने डेब्यू में अंजुमन के लिए डबल सेंचुरी और 13 विकेट लिए थे। ही केम इनटू लाइमलाइट इन बैंड। उसके बाद सलीम दुरानी यहाँ से हैं, वसीम जाफर हैं, गुलाम प्रकार है, आफ्ताब बलूच है, हम्म, अभी सरफराज है, फिर उसका भाई वहां पे है, बहुत सारे अभी क्रिकेटर्स हैं। और लास्ट 2 इयर्स बैक टू बैक अंजुमन ने इंटर स्कूल हैरी शील्ड जीता है, विच इज अ वेरी प्रेस्टिजियस। राइट, एक एक लास्ट ईयर ब्रेबॉर्न स्टेडियम में हुआ, ये बार वानखेड़े स्टेडियम। तो वी हैव अ फोर्ट इन क्रिकेट, फिल्म इंडस्ट्री। आप कॉर्पोरेट्स में देखिए, हमारे सब अलग अलग जगह पे हैं, टाटास में इधर उधर, और अभी भी है। हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं सीईओ टाटा केमिकल्स। तो व्हाट इज द बेंचमार्क ऑफ यार्डस्टिक ऑफ एक्सेलेंस इज दिस, वेयर आर योर एलुमनाई प्लीज। इंशाल्लाह आपकी दुआ होगी तो आने वाले साल में we might have an alumni get together of at least 25,000 in one of the stadiums. That's our wish. So वंडरफुल, that we get them together. जी जी सर, तो बेहतरीन, मतलब सभी शोबों में डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ आपके स्टूडेंट्स ने बहुत कामयाबी, बड़ी कामयाबी हासिल की है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप वैसे तो बड़ी अंजुमन इस्लाम का एक ऑल इंक्लूसिव अप्रोच रहता है, इसमें सभी मज़हबों के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आप मुस्लिम बच्चों पे काफ़ी ध्यान देते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अंजुमन इस्लाम का ग्रास रूट्स मुस्लिम कम्युनिटी में बच्चों को एजुकेशन की तरफ रुझान दिलाने का क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं? देखिए, हमारे पास जो बच्चे आते हैं, खास करके एलिमेंट्री एजुकेशन में, प्राइमरी सेकेंडरी में, ऑलमोस्ट 70% हमारे बच्चे फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, जी जिनके वालिदैन पढ़े लिखे नहीं हैं। जी, और मोर देन 60% आर रोटी कपड़ा मकान का मसला है उनके पास। हम्म, दे उनके लिए 2 स्क्वायर मील्स इज ए लग्जरी, वो मामलात हैं। और बहुत सारे मसले उनके साथ होते हैं, साइकोलॉजिकल, एजुकेशन रिलेटेड। सो वी डिसाइडेड टू इम्पार्ट होलिस्टिक एजुकेशन। ये नहीं बच्चे आए क्लास में किताबें पढ़ी और फिर घर जाके होमवर्क किए, नो, हम्म, वी हैव अ डिफरेंट अप्रोच। और इसके लिए हमारे जितने प्रिंसिपल्स हैं, 80% खातून हैं। हम्म, और हमारे टीचर्स, हम्म, दे आर सो मच डेडिकेटेड कि वो खिदमत खल्क समझ के काम करते हैं। जी, उसकी वजह यह है कि वी ऑल्सो टेक केयर ऑफ दैम। राइट, जैसे मिसाल के तौर पे कोविड आया था तो हमने उनकी पूरी सैलरी साल भर एवरी मंथ उनके अकाउंट में दी, विच नो ऑर्गेनाइजेशन बस। राइट, और जितने स्टाफ स्टूडेंट्स बीमार थे उनके हॉस्पिटल में एडमिशन, ट्रीटमेंट करना, ये सब हमने किया। राइट, लेकिन उसके बदले में जो उन्होंने सर्विसेज दे रहे हैं, हम्म, वो तारीफ काबिल है। राइट, अगर अंजुमन आज इस मकाम में पहुंचा है तो इसलिए नहीं कि हम मैनेज कर रहे हैं, इसलिए कि ये हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल्स, दे आर दी ड्राइवर्स। और हम्म, हमारे स्टूडेंट, तो मैं आ रहा था कि हमारे जो स्टूडेंट्स है, हम्म, उनके हालात आप देखने जाओ तो लगता है कि ये पढ़ कैसे लेंगे। तो हमने हाई एंड वाले काउंसलर्स रखे इन हाउस, और एक सिस्टम बनाया हमने। ये मेरा पर्सनल ये था हम्म, कि एक टीचर के पीछे 30 स्टूडेंट्स रहेंगे, दैट इज मेंटोर एंड मेंटी। हम्म, ये 30 स्टूडेंट्स के यहाँ हमारे
एक टीचर 1 in 6 month एक होम विजिट होगा। ओके। तो हमने एनालिसिस किया होम विजिट करने के बाद, तो पता चला कि लड़की के वालिद जो है, खास करके लड़कियों वाले, वो शराब पी के आते हैं, या नौकरी नहीं है, माँ घर का लिपा पोती का काम करती है, और दोनों कमाते हैं तो घर में पैसे उतने नहीं आते, बच्चों से काम करवाते हैं, और रहने के लिए जगह ही नहीं, नहीं के बराबर। अब पढ़ने के लिए स्टडी रूम किधर है उनके पास ना? और गैजेट्स है मॉडर्न, लैपटॉप हमारे जो रईस बच्चे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पास हर चीज़ है, इंटरनेट नहीं है, वगैरह वगैरह। और बच्चियां और लड़के जब रात सुबह में आते तो आंख थोड़ी सूजी होती है उनको, तो क्या, तो बोले नींद सो भी नहीं पाती। तो ये सब मसाइल का हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा काम नहीं है। तो वी लुक इनटू एवरी डिटेल। तो उनके कमियां जो हमको लगी, एक तो उनकी डाइट की, बच्चियां लड़कियां खास करके एनीमिक होती थी, जी। ट्यूबरक्लोसिस अभी भी है घर में, जी। और डोमेस्टिक वायलेंस है। तो इसका होलिस्टिक अप्रोच के लेके हम उनकी पूरी तरह से मदद करते हैं, उनकी मेडिकल हेल्थ केयर देखते हैं, कभी रेशनिंग की जरूरत हो पहुंचाते हैं, और काउंसलिंग होती है, पेरेंट्स की काउंसलिंग होती है खास जी। करके। और फिर हम स्टूडेंट्स को रोक के रखते थोड़े वक्त के लिए स्कूल आवर्स के बाद, ताकि वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करें। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। और फिर हमने सोचा कि वालिदैन को भी पढ़ाई में इन्वॉल्व करते, दो एज ए पायलट के प्रोजेक्ट्स हमने किया, बड़ी कामयाबी के साथ किया, इसलिए कि बड़ी तादाद में नहीं आए, जो आए वो छोड़ के नहीं गए, राइट। और उनको वर्केबल हिंदी, मराठी, उर्दू, मैथमेटिक्स ये सिखाया जाता है, और साथ साथ माओ को हुनर सिखाया जाता है, ताकि दे बिकम सेल्फ रिलायंट। राइट। उनकी फाइनेंशियल पोजीशन, ये तो हम सबके लिए नहीं कर सकते, जो हमारे डोमेन में आते हैं उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। श्योर। श्योर। ड्रॉप आउट्स बच्चे हैं उनको स्कूलों में ले आते हैं, जी। बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, हम लोग सब ड्रॉप आउट्स की बात करते हैं, लेकिन आउट ऑफ स्कूल भी बहुत बच्चे हैं। तो उनके लिए हम ट्रांसपोर्टेशन, यूनिफॉर्म, बुक्स, वेन एवर रेशन इज रिक्वायर्ड, ये सब चीज़ें दे के ले आते हैं, मदरसे के बच्चों को ले आते हैं, राइट। जो मदरसे की पढ़ाई होने के बाद उनको यहाँ लेके आते हैं। जी। तो ये जो हमारा एजुकेशन देने का जो सिलसिला है, ये गरीब से गरीब बच्चा आला तालीम पाए, और होलिस्टिक अप्रोच। जी। और मेरा तजुर्बा गुज़िश्ता 16 साल में यह है साहब, कि जो पासमानदगी से बच्चे आते हैं, कमजोर इससे, उनको मौका दे तो दे आर द परफॉर्मर्स, हमारे अचीवर्स सब वही नजर आते हैं। क्योंकि जिनके पास हर कुछ चीज़ है, तो वो सब आराम की जिंदगी है, कोई ट्यूशन लेता है, कोई उसके पास गैजेट्स है, वगैरह वगैरह। और जितने भी अचीवर्स हैं आज तक और आज भी, वो सब उसी में आते हैं। तो एक आपको सैंपल केस में बताऊंगा, मैं 2 मिनट लूंगा इसके ऊपर। जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई एजुकेशन पॉलिसी शुरू की, और उसमें उन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग का एक कॉन्सेप्ट लेके आया, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया, क्रिएटिविटी, वगैरह वगैरह, अर्ली अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग, ये सब चीजें आई। तो उन्होंने तय किया हम लेके तो आए, लेकिन लेट अस स्टार्ट दैट कॉन्सेप्ट। तो उन्होंने हर स्कूल में 8th और 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए अटल टिंकरिंग लैब बनाया। इसमें रिसर्च का जो मामला था, तो ये तुम्हारी प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग और स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी, स्वीडन की कोलैबोरेशन में किया गया। तो पूरे हिंदुस्तान में 1800 स्कूल चुने गए, उसमें अंजुमन की उर्दू मीडियम गर्ल्स स्कूल मुंबई में सिलेक्ट हुई। ओके। 13 स्कूल थे, इंटरनेशनल स्कूल है ये, उसमें एक स्कूल उर्दू मीडियम गर्ल्स स्कूल, जो बच्चियां सब लड़कियों के सब झोपड़पट्टे से आते हैं बेसिकली, फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। तो वहाँ वो इनॉग्रेट हुआ, तो बहुत बड़े साइंटिस्ट आए, उन्होंने इनॉग्रेट किया। तो 1 साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी ने कहा कि लेट अस फाइंड आउट कि उसका आउटकम क्या हुआ। ये स्कूल को सिलेक्ट किया गया, किंग एंड क्वीन स्वीडन आए थे। जी। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये तय किया कि ये लैब से बच्चों ने क्या रिसर्च प्रोजेक्ट किए। तो पूरे महाराष्ट्र में ये अंजुमन इस्लाम सैफदी गर्ल्स उर्दू मीडियम स्कूल को चुना गया। जी। 2 लड़कियां, दोनों हिजाब में,
और प्रगति मैदान में इसका एग्जीबिशन था, तो प्रधानमंत्री उनके टेबल पे आके 15 मिनट बिताए, उनको पूछा तुमने कैसे बनाया, क्या बनाया, इट वॉज शोन बाय ऑल टीवी। राइट 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 सर। 3 महीने के बाद एक इसी तरह का कंपटीशन हुआ तुम्हारे बैंकॉक में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करना था पूरे इंडिया में कौन सा रिसर्च प्रोजेक्ट। उन्होंने अंजुमन इस्लाम गर्ल्स स्कूल का प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया। ये 2 लड़कियों के फर्स्ट टाइम वो फ्लाइट में बैठे, वहां पे गए, एंड दे गॉट सिल्वर मेडल फॉर इंडिया। क्या बात है सर। क्या मैसेज दे रहा है? एक, अगर आपके पास टैलेंट है, मेरिट है, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता ऐसा भी नहीं बोल रहा, लेकिन टैलेंट होगा और आपके पास मेरिट होगा तो नहीं होगा। नंबर 2, लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। नंबर 3, ये लड़की का, एक लड़की का बाप टैक्सी ड्राइवर है, एक लड़की का बाप कारपेंटर है। हैंड टू माउथ सिचुएशन। अब उर्दू मीडियम में इसलिए आते कि फीस नहीं है। तो और एक मैसेज क्या जा रहा है कि वर्नाकुलर मीडियम से पढ़ने वाले बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा नहीं होता, एक 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 हवा बन गई है इंग्लिश मीडियम। ये तो उर्दू मीडियम कैसा। हमारी बांद्रा में एक उर्दू मीडियम स्कूल है जो धारावी से बच्चे आते हैं, धारावी नाम सुना होगा आपका, जी जी बिल्कुल। लार्जेस्ट स्लम इन इंडिया। राइट। वहां पे एक बच्चे ने पार्टिसिपेट किया आईआईटी कंपटीशन में, उसमें इनोवेटिव राइटिंग इन इंग्लिश, अच्छा। उर्दू मीडियम की बच्ची। और जब उसके नताइज आए आईआईटी के, तो फर्स्ट पोजीशन गया बॉम्बे स्कॉटिश को, जो नंबर 1 स्कूल है। सेकंड अंजुमन इस्लाम बांद्रा गर्ल्स स्कूल को। क्या मैसेज दे रहा है? लड़कियां पढ़ रही हैं, वर्नाकुलर मीडियम के बच्चे, अगर अच्छी तालीम दोगे आप तो आगे बढ़ेंगे। जी जी। तो सर अब आपसे एक जानना चाहेंगे, अंजुमन इस्लाम में आप इतना काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, तो आपका कि हाउ डज इट सस्टेन इटसेल्फ, इतने बड़े इंस्टीट्यूट्स चलाता है, व्हाट इज़ द मॉडल विच सस्टेन्स अंजुमन इस्लाम, इज़ देयर अ फी स्ट्रक्चर और चैरिटी, Yes, व्हाट yes. हैपेंस? जी। Yeah, it is like this. We have created a system where whatever surplus we generate from professional institutions, that goes for a cross subsidy to vernacular medium schools. राइट। And from that perspective, हम self sufficient हैं। हमारे financial due diligence अच्छा है, very professionally done. CFO we have a CEO which is managed in a professional manner. और हमारे जो नए प्रोजेक्ट्स बनते, that we don't do it, we can't do it, so we get philanthropy support ओके। from well-known philanthropists, and they also see to it that we spend it properly. They know that this is one organization which can be dependable, so we have created that brand. So at श्योर। any point of time, if you want to start a new institution, we approach the people and they say go ahead। राइट। थोड़ा सीड कैपिटल हम डालते, फिर पैसा आता है, और थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप भी आती है। हम गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप जो है, अंजुमन की बहुत जबरदस्त पकड़ है इसमें। अच्छा। वी हैव इन एवरी इंस्टीट्यूशन अ स्पेशल डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप ले। अच्छा। तो बच्चों ने सिर्फ फॉर्म भरना है, सब बाकी सब फॉर्मेलिटीज हम कर लेते हैं। उसके साथ साथ जक़ात के फंडिंग भी आती है, नॉन जक़ात की भी आती है। हमारा एक सहारा यूनिट है जी। जो लुक्स आफ्टर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम। उसकी एक राइट। चेयरपर्सन है, और उसके साथ साथ एक टीम है। इट इज़ वेरी प्रोफेशनली मैनेज। और जो बच्चों को ज़कात के मुस्तहिक हैं, नॉन ज़कात के भी है, उनके वालिदैन की इंटरव्यू होती है। वी गो इनटू द डिटेल्स। एक बच्चा अगर सिस्टम में आ गया, से फर्स्ट स्टैंडर्ड में, वो जब तक पूरी तालीम मुकम्मल नहीं करता, मास्टर्स, बैचलर्स एंड पीएचडी, उसका पूरा पैसा दिया जाता है। क्या बात तो और वो जो डोनर्स जो सपोर्ट करते हैं, है। जी। उनके पास से डिटेल जाती है। दे टॉक टू जी। दैट स्टूडेंट, दे आर इन टच कॉन्स्टेंटली विद देम। तो राइट। ये भी हमारा सिलसिला है। तो इन इन फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, माशाल्लाह, वी हैव नो प्रॉब्लम। आवर बोथ द ऑर्फनेजेस आर सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल। एक ऑर्फनेज बहुत अच्छा चलता है तो वो उधर का क्रॉस सब्सिडी उधर चली जाता है। अच्छा। तो सो फार, टच वुड, we have had no problem. The problem would have been during COVID, and we राइट। we could hold our fort. We managed to give salary to everyone. Nobody was removed from the job, and those who were sick. I am being a doctor myself, 24/7. We were around. We used to get them admitted. Admission was very difficult. All that was done. So Allah का करम है कि last 16 years में we have made ourselves financially very sound। जी। 1 और 2 कोविड आए तो भी अंजुमन को
डैमेज होने के चांसेस नहीं है। जी। और एक और चीज है अंजुमन की कि बड़ा इदारा है तो लोगों के एक्सपेक्टेशन भी बहुत होते हैं। जी। बोले आप नहीं करो तो कौन करेगा, तो फिर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। फिर हम लोगों के पास चले जाते हैं, दे दे अल्लाह के नाम पे दे दे। तो 16 साल से मुझे आदत सी हो गई कि जिनकी जेब में पैसा होता है मैं हाथ डालने की कोशिश करता, प्यार मोहब्बत से। और देते भी हैं लोग, ऐसा है। जी। जी। तो it is basically a self-sustainable model which we should do it, and it is not commercial. राइट। We are very proud private organization, non-commercial. आपने एक इतना बड़ा इदारा खड़ा किया है और उसकी कामयाबी के चलते आपसे ये सवाल बनता है सर कि हमारे देश में, हमारे मुल्क में अभी भी ज़्यादातर मुस्लिम बच्चे, अगर हम उत्तर प्रदेश, बिहार, इन क्षेत्रों की बात करें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहाँ पर अभी भी बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं जहाँ पर उनको प्लेसमेंट का कोई स्कोप नहीं होता। देर इज़ नो स्कोप ऑफ इंक्वायरी। सबमिसिव जो एजुकेशन है वो इम्पार्ट की जाती है, क्वेश्चनिंग को इनक्रेज नहीं किया जाता है। ऐसे में सर, क्योंकि आपने एक ऐसा मॉडल खड़ा किया है जो कि एक मिसाल बना है पूरी दुनिया के लिए, आपकी फ़िलहाल हाल ही में NSA अजीत डोभाल साहब के साथ एक मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने भी आपके सामने एक राय रखी और मशवरा दिया कि एक कोई ऐसा कॉर्पस खड़ा करना चाहिए जिसकी मदद से आप पूरे मुल्क के बच्चों को, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो, कोई सी को भी तालीम जिसको ज़रूरत है उसको दें, और जो कॉर्पस है उसमें भी सभी लोग कंट्रीब्यूट करें। तो आपको लगता है कि इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, और यदि बढ़ाया जा सकता है तो कैसे? इसके सामने क्या प्लान होना चाहिए, रोड ये मैप होना चाहिए? ये जब गुफ्तगू हुई उनके साथ, जी। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जी। विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल, कि आपके जो गरीब बच्चे हैं, मेरिटोरियस भी है, जी। मिसाल के तौर पे किसी को एम्स में एडमिशन मिल रहा है लेकिन उसके पास वो ताकत नहीं है फीस भरने की, वगैरह वगैरह, पैन इंडिया लेवल पे। जी। तो उसी उसी वक्त में मैंने कहा कि ये जिम्मेदारी हम लेने को तैयार हैं, जी। क्योंकि हमारे पास एक मॉडल भी है, उसका ढांचा भी है, पैन इंडिया हम कोशिश करेंगे। और उन्होंने एक अच्छा बात बात कही कि नॉन मुस्लिम बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ उतने बड़े बड़े लोग है भी नहीं। जी। और ये भी होगा कि सिर्फ हम मुसलमानों को ही नहीं, दूसरे गरीब जी। बच्चों को जैसा अंजुमन में भी दिया जाता है वो फार्मूला हम रखेंगे। और क्योंकि हमारे पास ये मॉडल को चलाने का, बड़ा कामयाबी के साथ चलाने का जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम जोड़ सकते हैं और हमारे साथ दूसरे भी जुड़ जाएं, द मोर द मैरियर। और उसी वक्त मैंने उनसे कहा कि हम जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं इस बात की, चलो जी। उसको आगे बढ़ाया जाए। जी। तो उसका एक खाका बना के फिर उनके पास कॉरेस्पॉन्डेंट किया जाए, जो भी तरीका हो मिलने का, या दूसरे भी जरिए, क्योंकि बहुत बिजी शख्सियत हैं आप, जी। तो उसके अलग अलग तरीके हैं। हम्म। तो आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट। हमारा जो सहारा प्रोजेक्ट है, वो उनसे बात की, दे आर ऑल प्रोफेशनल्स इन अ वे, कि लेट अस टेक इट टू पैन इंडिया, व्हाई नॉट। हम्म। और खास करके नॉर्दर्न बेल्ट जो हमारा है, जी। हिंदी बेल्ट जहाँ कहा जाता है, जी। साउथ में, वेस्ट में, ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है, और भी इदारे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, जी। लेकिन वहाँ पे ध्यान नहीं गया बहुत लोगों का, जो वहाँ के लोग थे जाना। लेकिन एक बात मैं बताता चलूँ, जब भी मैं कहीं मुझे बुलाया जाता है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, गुफ्तगू होती है, आप कोलैबोरेट करेंगे, मैं कह रहा बिल्कुल करेंगे, आप आइए सामने से, आप जमीन का इंतजाम कीजिए, कुछ कीजिए परमिशंस का, फिर हम शुरू करेंगे। लेकिन फिर उन लोग, वो बात वहीं हो जाती, खत्म हो जाती है, तो सोडा वाटर बॉटल के जैसा रहता है ना, वो आ जाता है, थोड़े जोश आता है और फिर निकल जाता है। ये जरा कमजोरी उस बेल्ट में देखी गई। जी। तो जी। मैं एक कोशिश में हूँ कि अंजुमन बियॉन्ड महाराष्ट्र किस तरह जा सकता है, वो भी हम सोच रहे हैं। जी। 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 एक आखिरी सवाल सर आपसे है कि आप एक जीती जागती एक मिसाल हैं, और आपने बताया भी अगर टैलेंट है तो देर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो नथिंग कैन स्टॉप यू। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ आपका क्या संदेश है मुल्क के लोगों देखिए, मेरा ये मैसेज है, जो
चाहते हैं कि कुछ इस तरह के इदारे मुकम्मल इदारे खड़े करें और गवर्नमेंट से जो भी परमिशंस हो वो सब मिल जाती है, लेकिन कानून के दायरे में रह के हमको करना, शॉर्टकट नहीं चलेगा। ये नहीं कि हम कमजोर हैं, हम ये है तो हमको अलग से अलग कोई देगा नहीं। आप जी। देना चाहे भी तो देगा नहीं। लेट्स नॉट बी इन द फॉल्स बिलीफ। तो हमको जो भी करना है सिस्टम से जाएं, हमारा होमवर्क करें, और जो नई चीज बनाना चाहते हैं अगर हम हजम कर सकते हैं तो वो नई चीज बनाना, वो खुराक खाइए जो आप हजम कर सकते हैं। और अगर मेरिट होगा ना तो तासुब नहीं के बराबर रहेगा, ये मेरा दावा है। ये इसका मतलब ये नहीं कि तासुब नहीं है, जी। ये भी स्टेटमेंट देना सही नहीं रहेगा, लेकिन टू टू मिनिमाइज दैट हम्म, हमने तालीम के मैदान में मेयारी तालीम देने की कोशिश करनी चाहिए, और सिस्टम में रह के, जी। शॉर्टकट नहीं, कानून की कहीं पकड़ में ना आए। अगर ऐसा काम होता है तो कोई आपको तकलीफ नहीं देगा। हाँ, अच्छा काम करने वालों को तकलीफ अपने ही लोग देते हैं साहब, राइट। राइट। दूसरों का क्या। अभी अपने दूसरों का मतलब हमारे कौम के लोग खुद आपको तकलीफ देंगे। अगर कौम का बड़ा इदारा है तो उसमें तकलीफ वहीं से आती है। जी। अगर कोई माइनॉरिटी का इदारा है जो प्राइवेट लिमिटेड है, उसके पास कोई नहीं जाता। हम्म, चैरिटेबल होगा तो मुश्किल आता है, लेकिन फिर भी अल्लाह का करम है, अच्छे काम होते तो गैवाना मदद आती। मुझे अक्सर पूछा जाता है कि अंजुमन की कामयाबी का राज क्या है। जी। तो मैं बोलती हूँ कि राज तो है कि हमारे बुजुर्गों की दुआएं हैं, जी। क्योंकि ये इदारा 151 साल चला नहीं बल्कि बढ़ते गया है, क्योंकि उनकी दुआएं हैं। जी। और गैबाना मदद आ जाती है। तकलीफें किसको नहीं आती। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं होता। जी। प्रॉब्लम तो सबको रहते, प्रॉब्लम को हल करने, प्रॉब्लम को हम अपॉर्चुनिटी ले लेते ना, क्यों नहीं। जी। जी। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ, आराम से चल रहा है, नहीं साहब, ऐसा नहीं होता। जी। नया बिजनेस पे होगा तो उसमें यू हैव टू मेक एफर्ट्स, डॉक्टर को भी एफर्ट्स करने पड़ते हैं, सबको करने पड़ते हैं, वो एफर्ट शुड नॉट फेल। राइट। एंड ईमान, ईमान तुम्हारा मजबूत होना चाहिए, उसमें बिल्कुल। कॉम्प्रोमाइज नहीं। बिल्कुल। आप अच्छे मुसलमान बनो, हिंदू अच्छा हिंदू होना चाहिए, ईसाई अच्छा हिंदू ईसाई होना चाहिए। अगर आप रिलीजन फॉलो करते हो सही तरीके से तो ये सब परेशानियां होंगी नहीं कहीं। और अंजुमन एक मिसाली इदारा इसलिए है, तारीखी इदारा, मिसाली मियारी इसलिए भी है कि हम सबको लेके चलने चाहते। जी। जी। हमारे फैकल्टी में मिक्स लोग हैं, स्टूडेंट्स भी मिक्स हैं। एक इदारा ऐसा है हमारा, केटरिंग कॉलेज, 49% इज ओपन कैटेगरी, तो गैर कौम के लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। जी। जी। तो तुम्हारे इदारे में दूसरे कौम के बच्चे आना चाहिए, ये बोल के कि आपका मेयर इदारा है, राइट। राइट। तो देन दैट इज योर ब्रांड एट द एंड ऑफ द डे। यस। तो बहुत अच्छी गुफ्तगू रही सर आपसे। आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए और मशवरा, और अपने रोड मैप भी एक बताया कि क्या हो सकता है। आवाज़ द वॉइस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एक सर। एक एक चीज मैं यस। कहूंगा, जी सर। हमारी जो गुफ्तगू अजीत डोवल साहब से हुई, he was upfront. His advices were very practical, and वो भी दर्द रखते हैं कि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू कम्युनिटी में हो, जहाँ भी है, उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और अच्छा रहा माहौल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे इस गुफ्तगू के लिए, और आपने अपना कीमती टाइम दिया और कई आपने मालूमात की बातें बताई, और एक रोड मैप भी सजेस्ट किया जो किया जा सकता है। कुछ भी अचीव करने के लिए ज़िंदगी में चैलेंजेस आते हैं, उनको नेगोशिएट करना, उनको पार करने से ही कुछ अचीव कर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इट वाज रियली अ आपका भी बहुत प्लेजर बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत सर। शुक्रिया, क्योंकि इस नाचिस को आपने मौका दिया। और अंजुमन की तरफ से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना वक्त हमें दिया, और आपके चैनल के जरिए ये बात बहुत दूर तक चली जाएगी। राइट सर। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इसका। इट्स एन ऑनर सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।